Back everybody. In this video, this is Supil Singh together with Akshay Gandhi and Manasvi. In this video, we're gonna discuss about the interview experience and the process of Principal Global. So Manasvi, can you please introduce yourself? Yes, sure. Hi Supril. Hi Akshay. Hi. So, as you already mentioned, hi everybody. I am Manasvi Purohit, and I'm a graduate from Ramdeva College of Engineering and Management, and I'm one of the few people from my batch who actually cleared the entire round of Principal Global. So I'll be here to help you guys and hopefully give you some tips as well by the end of this video, so that you are able to crack the Great same to have interview. you. Great to have you. Okay, so Thank you. let's talk about Principal Global, like about company. How is the company and what package and all? Okay, so in a nutshell, basically, Principal Global comes in the campus and gives both internship and FTE roles. Okay. So the stipend for internships is around 15,000, and the CTC for FTE is around 6 LPA. So Okay. that is the basic part about So Principal it Global. was on campus drive, right? Yes, it's basically a pool campus drive. Yeah, generally for Nagpur it comes in the campus of Ramdev Baba, but then the people from YCC and other colleges are also Okay. Just able to like participate. Accenture Yeah, it is. Sure. So let's talk about process. So it's an online portal where the exam is held, and what are the rounds? Let's talk about that. sure. So the entire process is like divided into two parts mainly. The first part being the aptitude test, which is like two sets of aptitude tests, and then we have two sets of interviews. So yeah, we'll dig into that later. How was the process? कि कितने rounds थे? कहाँ conduct किया गया? क्या platform था? Sure. So the whole selection process was divided into two rounds. The first round was a set of aptitude test और उसके बाद दो interviews. तो जो पहला set था of aptitude tests, उसमें दो aptitude tests थे. First was very easy aptitude test. I think वो जो first set है that was only conducted so that students have a hang of how the whole selection process is going to be there, right? Okay. So basic format of that aptitude test was around 16 questions. Level of difficulty would be very easy, but the key was here time and speed, because the time was very less. 16 questions in about 8 to 10 minutes. ओके So the गिविंग key माई is here पर्सनल speed. एक्सपीरियंस लाइक हम लोग के कैंपस ड्राइव में 2021 जब हुआ था तो मेजॉरिटी 90% ऑफ द पॉपुलेशन ये फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया था. Right. Same here. Yes. Yeah, let's come to second round. What was the difficulty level and how it Right. was? Right. Yeah. So yeah. the most important, I think so. The most important point, the round here is second round, Yeah. because the maximum disqualification happens here itself. So Exactly. let's talk about this. Yeah. Yeah, पूरे interview process, पूरे selection process का the most important point is this round only, because अगर if I talk numbers, हमारे time पे around 850 people ने दिया था ये aptitude test, and around only 110 got selected for the interviews. Okay. So इतना around 750 लोगों को उन्होंने किया reject from the aptitude test itself. So well, to be honest, the whole aptitude test, the level of difficulty is very high. अगर किसी ने CAT exam दी है तो उनको idea होगा. The structure and format and level of difficulty is very similar to the exam CAT. और किसी ने e-litmus भी देखा हो, अगर दिया हो तो वो e-litmus प्लेटफॉर्म में होता है, so you know e-litmus. Right. So the whole point is this exam is divided into three parts: LRDI, quants, and verbal. So I think थोड़ा gist दे दीजिए हर. Sure. So LRDI is basically your logical reasoning and data interpretation. Okay. Graph questions and वो वाले questions and all. Quants is your basic arithmetic and all quants. And what else? Verbal is your English comprehension and all, reading comprehension, grammar वगैरह, vocab and all. Vocab नहीं रहता actually अपना, grammar and reading comprehension. Okay. सो ये जो ई लिटमस आपने बताया, ये थ्री टाइप्स के जो भी है, वर्बल, रीजनिंग एक्सेट्रा. सो इज देयर Right. एनी इंडिविजुअल कट ऑफ
or you have to clear in whole paper you have to get some marks, or specific subject का individual cutoff था? I got it. So there was actually individual cutoff, per section cutoff होता है. Okay. And the thing is, cutoff is not very high. It's extremely low because the level of difficulty is so high. Okay. So yeah, that is the point. But individual cutoff होता है, yes. So इसके लिए कोई strategy होगी कि litmus को कैसे crack किया जाए? Yeah. Yes. So the thing is, if there is not a lot of time to prepare for this exam because the difficulty level is so high. जैसे CAT के लिए आप 6-8 महीने prepare करते हो आप, you cannot prepare for 6 to 8 months for this one exam, right? Absolutely. So यहाँ पे strategy का role बहुत ज़्यादा important हो जाता है because of that. So one of the, there can be a lot of strategies actually, but one strategy that I used and that helped me was जो marking scheme है ना ये exam की, उसको अपने advantage पे play करो. The marking scheme is, there are some positive points for correct answer, but then the negative marking scheme जो है वो exponential है. So the thing is कि until you can actually go to the website and check the exact marking scheme. It's very complicated, but in a nutshell, you don't get negative marking points until a certain negative answers. Threshold is passed, like 10 questions. Exactly. Around 8 to 10 questions जब तक तुम्हारे हो जाते हैं wrong, उसके नेगेटिव नहीं होते, उसके बाद चालू होती है नेगेटिव मार्किंग, एंड वो भी एक्सपोनेंशियली. तो इट स्टार्ट्स ऑफ वेरी स्लो एंड देन गोज टू हाई, वेरी हाई. सो अनलेस एंड अनटिल इट्स लाइक कि तुमने पूरा सेक्शन ही गलत सॉल्व किया है, यू आर गुड. ओके, सो बहुत लोग गलती क्या करते हैं बिकॉज इट्स हार्ड, तो एक क्वेश्चन के पीछे अटक जाते हैं एंड एंड अप सॉल्विंग आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस अराउंड ओनली 20 क्वेश्चंस. बट व्हाट आई डिड वाज आई सॉल्व्ड अराउंड 50 to 55 क्वेश्चंस. मतलब इट्स लाइक टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स. I won't say go to एकदम से तुक्के मारो, तुक्के मत मारो. Take calculated risk. थोड़ा अंदाजा है. Go with process of elimination. Between two options, go and choose one option. Yeah, go that way and solve as many questions as you can because that will help to increase your overall score and overall and individual cutoff. हाँ तो हाँ वो बिल्कुल सही. मेरा एक दोस्त था, मैं अपना पर्सनल में, मेरा एक दोस्त था, उसने इंडिविजुअल कट ऑफ एक सेक्शन में बहुत अच्छा किया, बट एक सेक्शन में उसने नहीं क्रॉस किया, उसका टाइम ही नहीं बचा. सो वहाँ पे उसका रह गया था. सो मेक श्योर आप ईच एंड एवरी सेक्शंस का क्लियर करें, भले कम करें बट सेक्शन वाइज चले. राइट. या सो नेक्स्ट अगर ये राउंड होने के बाद कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं? ओके, सो the first thing, if you clear this round, congratulations. तुम्हारे काफी अच्छे chances हो चुके हैं already select होने के. इसके बाद there are 2 rounds and plus HR. ठीक है. Okay. So the first round is technical round. अब depending on this round, तुम्हारा next round decide होगा. तो ये जो technical round है, अगर तुमने इसमें बहुत अच्छे से perform किया, the interview is very happy with your answers and all, तो next round will be directly managerial round, cultural fit round. तुम क्या करते हो एंड ऑल, तुम्हारे इंटरेस्ट हॉबीज वो अराउंड है. एंड उसके बाद देयर इज एक्चुअली हाँ, ये 2 राउंड के बीच में एक पजल राउंड भी है. आई फॉरगॉट टू मेंशन, देयर इज अ पजल राउंड एज वेल, एंड देन अ मैनेजरियल राउंड एंड देन एन एचआर राउंड. अगर तुम्हारा फर्स्ट राउंड इज वेरी बैड तो तुम ऑफ कोर्स रिजेक्ट हो जाओगे, एलिमिनेट हो जाओगे, राइट? यस. बट इफ इट्स सो और एवरेज, तो द सेकंड राउंड इज अगेन टेक्निकल. ओके, मतलब इट्स टेक्निकल प्लस मैनेजरियल एक्चुअली, बट तुमको टेक्निकल चीजें फिर से पूछते हैं जस्ट टू मेक श्योर. या, सो द फर्स्ट राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो पजल राउंड के बारे में थोड़ा बता दीजिए. पजल राउंड इज एक्चुअली वेरी फनी टू बी ऑनेस्ट. तुमको कुछ पजल देते हैं, बेसिक पजल्स, सीक्वेंस फिलिंग एंड ऑल, वो सब टाइप के पजल्स देते हैं. द लेवल आई वुड से इज मीडियम, नॉट टू इजी, नॉट टू हार्ड, सॉल्वेबल. हमारे टाइम पे देयर वर अराउंड 6 puzzles. If you are able to crack 3 or 4 puzzles or more, you are good to go. You are good to go. Okay. Yes. Okay. And जैसे कुछ questions आपको याद होंगे जो आपको पूछे गए थे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड? Sure. Yes. So the thing with Principal Global is इसका ना बहुत कोडिंग का इन्फ्लुएंस नहीं है in the process of selection. ठीक है. आगे जॉब रोल इज जावा बेस्ड, तो वहाँ पे है कोडिंग का काम. बट देन फॉर द पीपल फ्रॉम कोर ब्रांचेस, बेसिकली नॉन आईटी बैकग्राउंड्स, वो लोग भी इसमें बैठ सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे चांसेस उनके सिलेक्ट होने के. बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर, हमारे टाइम जितने भी बच्चों को लेके गए थे, 50% वर फ्रॉम CSIT एंड द रेस्ट 50% वर फ्रॉम द अदर ब्रांचेस. नेक्स्ट थिंग इज, तुम्हारे फर्स्ट राउंड में तुम्हारे रेज्यूम पे बहुत पूछते हैं.
So it doesn't matter, you know, if your resume is very impressive or not. But the thing is, जो भी तुम्हारे resume पे है ना, तुम you should be thorough, एकदम in and out. तुमने जो भी प्रोजेक्ट्स किए, तुमने जो भी कोर्सेज किए हैं, तुमको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कोई सिंपल सा जावा एप्लीकेशन बनाया, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल हो रहा है, तो तुमने उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की, जो डेटाबेस यूज़ किया, तो वो यूज़ तो किया, बट क्यों यूज़ किया, उसकी जगह कोई और यूज़ क्यों नहीं किया, तो जो यूज़ किया उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इफ़ एनी. सो दैट वे जो भी तुमने लिखा है तुम्हारे रेज्यूम पे, उसके थ्रू एकदम थरो होना चाहिए. एक्चुअली दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ advice for all the interviews. Not necessarily तुम्हारा resume बहुत impressive हो, but you should be thorough with whatever you have. Yeah, actually this is a true thing. मतलब आप अपने रेज्यूमे में जो भी लिख रहे हो ना, वो आप थरो होने चाहिए. कुछ झूठ मत लिखो या कुछ लिखो मत जो आपने किया नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, इट विल गिव अ बैड इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर इटसेल्फ कि आपको पता नहीं और आप लिख रहे हो रेज्यूमे में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू ऑल द योर हायरिंग प्रोसेस. जो जिस भी कंपनी के लिए आप बैठोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. Okay, so it's like technical questions पूछे गए थे कि it was on general questions. Okay, so यहाँ पे थोड़ा bias आता है इंटरव्यूअर का. The thing is, अगर कोई CS वाला बंदा बैठा है, तो the interviewer is you know sort of sure कि हाँ इसको बेसिक्स तो आते होंगे, भले एक्सपर्ट नहीं होगा बट बेसिक्स तो आते होंगे. बट इफ द पर्सन इज नॉन CS वाला बंदा जो बैठा है सामने इंटरव्यू के, इंटरव्यूअर थोड़ा ज़्यादा ग्रिल करता है उसको ऑन टेक्निकल क्वेश्चंस. एक्चुअली CS वालों को इतना ग्रिल नहीं करते हैं. बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक दो डेटाबेस के क्वेश्चन पूछ लेंगे, एसक्यूएल की एक क्वेरी पूछ लेंगे, सिंपल सी. बट नॉन CS वालों को थोड़ा ग्रिल ज़्यादा करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि उनको आता है कि नहीं आता है. तो उनको जो पूछा जाता है वो उनके सब्जेक्ट से पूछा जाता है या CS का ही CS का पूछा जाता है. तो इसमें एक्चुअली द की इज डू नॉट पैनिक. वो तुमको जबरदस्ती डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो तुमको जो आता है उस पर स्टिक रहो, जितना आता है उतना बोलो, बस पैनिक मत करो. ओके, कॉन्फिडेंस जो भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंस से बोलो. यस. तो इसके बाद सेकंड राउंड वाज मैनेजरियल. सो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे. राइट. ओके, सो थोड़ा मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा. मेरा इंटरव्यू वाज काइंड ऑफ एवरेज द फर्स्ट टेक्निकल राउंड. तो मेरा सेकंड राउंड टेक्निकल प्लस मैनेजरियल हुआ था. तो जो इंटरव्यूअर था, ही अप्लाइड दिस स्ट्रैटेजी. उसने जो क्वेश्चंस मेरे को फर्स्ट राउंड में पूछे थे मेरे रेज्यूम पे, वो रेज्यूम पे उन्होंने मार्क करके रखा था, सर्कल करके रखा था कि ये चीज़ पूछा है, ये चीज़ पूछा है, और वही रेज्यूम फिर आगे फॉरवर्ड हुआ. तो जो सेकंड राउंड का इंटरव्यूअर था उसको दिखिए वो सब मार्क चीज़ है, उसने वही सब चीज़ें मेरे को फिर से पूछी, सेम क्वेश्चंस अगेन. सो आई थिंक दैट वाज टू मेक श्योर कि मैंने जो आंसर्स दिए हैं मे बी वो उतने कन्विंसिंग नहीं लगे उसको, तो मैं मेरे आंसर से पलटता हूँ क्या. तो अगर ऐसा होता है तो अपने आंसर से पलटो मत, तुमने जो आंसर दिए जस्ट स्टिक टू दैट. दैट्स वन थिंग. एंड उसके बाद मैनेजरियल राउंड इज एक्चुअली प्रीटी इजी. इट्स मोर अबाउट यू नो स्ट्रेस वाली सिचुएशन एंड ऑल. तुमको मैं तुम कैसे परफॉर्म करोगे. हाँ, इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेस इंटरव्यू. HR कैसा हुआ था? HR का राउंड जो हुआ था वो कैसा था? राइट. सो अब द थिंग इज, तुम्हारा यहाँ तक हो गया है तो 99% है कि तुम यहाँ पे हो जाओगे, अनलेस एंड अनटिल तुम बहुत ही कुछ गड़बड़ करके आ जाए इस राउंड में, तुम रिजेक्ट हो गए. बट तुम्हारा हो चुका सिलेक्शन. बहुत एकदम स्टैंडर्ड HR क्वेश्चंस जो होते हैं, बस गूगल कर लेना, यू विल फाइंड एकदम बेसिक स्टैंडर्ड HR क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. वही पूछेंगे कि व्हाट इफ यू गेट अ हायर पैकेज, विल यू लीव प्रिंसिपल ग्लोबल. जस्ट गो विद स्ट्रेट प्लेन नो, नहीं छोड़ूंगा. कितना भी ग्रिल करे, नहीं छोड़ेंगे, हम प्रिंसिपल ग्लोबल के साथ ही रहेंगे. मतलब इवन दे वांट टू सी कि तुम मैनिपुलेट हो सकते हो क्या. कितना भी ग्रिल किया तो बस मैनिपुलेट नहीं होना, दैट इज ऑल. सो लास्टली प्लीज एक दो मतलब अपने एक्सपीरियंस से यू कैन समराइज 3 or 4 पॉइंट्स, जस्ट क्विक, रियल क्विक. राइट. ओके, सो टिप्स एंड ट्रिक्स. Tips would be focus more on the aptitude test because that is one place they eliminate a lot of people and unka wo bar hai actually to take people or not. तो e-litmus पे ज़्यादा फोकस करो देन कोडिंग, बिकॉज कोडिंग राउंड तो है ही नहीं. राइट, देयर इज नो कोडिंग राउंड. क्योंकि जब ट्रेनिंग में जाते हो इंटर्नशिप के टाइम, तब तुमको वो कोडिंग सिखाते हैं फ्रॉम स्क्रैच, जावा पूरा. तो फोकस ऑन द एप्टीट्यूड टेस्ट अलॉट. एम्प्लॉय मल्टीपल ट्रिक्स एंड सी कौन सा तुम्हारे लिए काम करता है, कौन सा नहीं करता है. वन ऑफ द ट्रिक्स मैंने तुमको बताया, सी दैट वर्क्स फॉर यू. एंड थोड़ा अपने बेसिक टेक्निकल स्किल्स पे ब्रश अप करके जाओ, यू शुड बी फाइन. Thanks for the wonderful advice, Manasvi. Hope you guys have liked the video. If you have any queries or suggestions, make sure you drop it down below.
That's all from our side. This is us signing out. Bye bye and all the best for your upcoming Principal Global exam. All right. Signing. Thanks, guys. Thanks a lot. Thanks. Bye. Thanks.